Let's begin with level 2. So what is level 2? How to change tense form? How to change tense form is a level 2. How many tenses do we have? We have total how many tenses? सर हम पढ़े लिखे नहीं हैं तो क्या करें? बचपन में पढ़े थे. Yes, we have total 12 tenses. 3 phases, we call 3 phases: present phase, past phase and future phase. Every phase consists of 4 tenses. Present phase 4, past phase 4, future phase 4. Total 12 tenses. But future form carries only will. So will convert to would. That's why this is not important for your examination concern. What you need to study? Only present phase and past phase. 8 tenses for indirect speech. 8 tenses for indirect speech. Present 4 and past 4. Now what are the present 4? One we have present simple tense. Then we have present continuous tense, present perfect tense, present perfect continuous tense. When you have present simple tense, do, does, verb form should be V1. Continuous tense, am, is, are, verb form should be V4. Perfect tense, have and has, verb form should be V3. Present perfect continuous tense, have been and has been, verb form should be V4. These are the present form, present tense. Don't be hurried. Don't be a laborer. I hate labor work. Do something smart work. लेबर कोई कभी नया काम नहीं करता, वो वही करता जो उसको रोज करना होता. इसके लिए वो आज भी लेबरर है. पहले अच्छी तरह से सुनो, चुपचाप बैठ के ऑब्जर्व करो हर एक वर्ड को. सिंपल में क्या आ रहा है, परफेक्ट में क्या आ रहा है, कंटिन्यूस में क्या आ रहा है. ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट. डोंट एंग्री मी. Present simple tense. As you see, 2 terms, do and does. Present simple tense. Verb form is V1. Why it is V1? We will discuss slowly. Continue. Here we have continue. Here we have continue. Whenever you got continue, you got the verb form V4. As you see here, continue. As you see here, continue. The verb form, both the places we have V4 form. Does it mean the V4 form? The V1 form, what you have? V1 form, come. V1 form, play. V1 form, do. V1 form, write. These are all V1 forms. What is V4 form? V4 form when you are adding in form. When you are adding in form, come. Convert to coming. Add in form, play. Add in form. Add in form. The in form.
So you are adding V1 in to convert to V4 form. Okay? I'm going very slow. Simple form do does V1. Continue am is are V4. Perfect have and has V3. Present perfect continuous have been and has been V4. If these words are given in direct speech, then you will have to convert to indirect speech. Present simple convert to past simple. Present simple convert to past simple. Past simple do and does. Past simple convert to did. Verb form V1. Present continuous am is are continuous. Past continuous was and were. Verb form V4 because continuous here also continuous. So continuous means is obviously V4 form. Present perfect tense convert to past perfect tense. Verb form had plus V3. Present perfect continuous tense convert to past perfect continuous tense had been plus V4 form. Sit and just observe. Present continuous am is are given. You have to convert to was were. Present perfect have and has given. You have to convert to had plus V3. Present perfect continuous tense have been and has been given. You have to convert to had been. Okay? Now see here. Past simple tense. And this is the V1 form. And now we will be writing what? V2 form. Now all the V2 form. Example. Come. V2 form came. Play. V2 form played. V2 form do. Did. V2 form write. V2 form. Same thing. If you talk about V3 forms, V3, because this is V1, V2, now I will be writing what? V3. Now what is this V3? V3 meaning is have or has or had. Usage V3 form. ये भी पास्ट फॉर्म है, ये भी पास्ट फॉर्म है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? ये भी पास्ट फॉर्म है, वो भी पास्ट फॉर्म है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? मैं कहूं I wrote a letter. I wrote a letter. ओके, पास्ट फॉर्म है. अगर मैं ऐसा कहूं I have written a letter. I have V3 written, right, wrote, written. I have written a letter. दोनों में डिफरेंस क्या है? ये जो पास्ट फॉर्म है I wrote a letter, यानी पहले हो चुका है, प्रेजेंट से उससे संबंधित नहीं है. अगर मैं कहूँ I have written a letter, आपने पास्ट में लिखा जरूर है, लेकिन उसका मकसद प्रेजेंट में है आपको दिखाने से. तो देखिए मैंने कल तो किया हूँ, लेकिन आज आपके सामने है. You can see it now. I have written a letter. I have written a letter. You can see. It means आप कल आए थे, कल ही हो गया, कल से आज से उससे कुछ भी संबंध नहीं है. लेकिन ये ऐसा V3 फॉर्म है,
आप कल किए थे कुछ तो, लेकिन आज आपको आके बताना है, दिखाना है, पूछना है। कल के इंसिडेंट से आज उसका संबंध है। तो ऐसे सिचुएशन में हम वर्ड्स को हैव, हैज और हैड के साथ में V3 को यूज करते हैं। वही आपका यहाँ पे ये फॉर्म। ठीक है। कल देखो, सुनो अच्छी तरह से सुनो। कल आपके पेरेंट्स ने आपको पूछा था, बेटा जाके पूछ के आओ कि कब से कॉलेज स्टार्ट हो रहे हैं। यानी आप अभी तक पूछे तो नहीं है ना आके। कल आपके पेरेंट्स ने आपको बोला था, आज आपको आके पूछना है। यानी कल का इंसिडेंट आज के लिए अभी बाकी है ना। यस और नो? तो आप क्या कहोगे? माय पेरेंट्स आस्क्ड कहोगे या फिर माय पेरेंट्स हैव आस्क्ड कहोगे? माय पेरेंट्स हैव आस्क्ड, क्योंकि अभी रिलेट करना है कल के इंसिडेंट्स के आज को। एक्सीडेंट हुआ है, एक्सीडेंट हुआ है, कल ही हो गया, परसों हो गया, तो उसको भूल भी गए। यस, लेकिन जो एक्सीडेंट हुआ है उस व्यक्ति के साथ में, वो तुरंत 2 दिन के बाद आपके सामने आ गया। आपको वही इंसिडेंट को आज बताना है, आज उसको लिंक करना है। तो क्या कहोगे? आई हैव सीन एक्सीडेंट और आई सॉ एक्सीडेंट। आई हैव सीन है क्योंकि पास्ट का ही एक्शन, लेकिन वो प्रेजेंट में आपको कुछ ना कुछ अगर दिखाना है, बोलना है। तो ये जो शब्द होते हैं, हम इसे कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल। हुआ तो पास्ट में है, लेकिन उसका संबंध स्टेट अवे प्रेजेंट से। पास्ट है, एक्शन कब हुआ है? पास्ट में है, लेकिन ये पार्टिसिपल है। उस पास्ट को, एक्शन को प्रेजेंट में यूज करने के लिए ऐसे कुछ शब्दों को यूज किया जाता है इंग्लिश में। मैं आपको बता रहा हूं, मैंने एक किताब, 2-3 किताब मैंने लिखा हुआ है, मैं अभी भी लिख रहा हूं। ठीक है, मैं कहूं आई रोट, यानी प्रेजेंट से भी उससे कोई संबंध नहीं है। मैंने लिख भी डाला, पब्लिश भी कर दिया। नहीं, अभी मेरा चल रहा है काम, अभी भी है, प्रेजेंट से उसको संबंध है, तो फिर मैं कहूँगा आई हैव रिटन अ बुक, क्योंकि अभी भी उसको मुझे काम करना है उसके ऊपर। आई हैव रिटन अ बुक, लेकिन अभी काम चल रहा है उसके ऊपर। समझ में आ रहा है आपको? तो जो कोई भी पास्ट का एक्शन प्रेजेंट में रिलेट होता है, ऐसे उस समय में हमें हैव, हैज और हैड को यूज करना है। यही डिफरेंस है पास्ट सिंपल टेंस में और पास्ट परफेक्ट टेंस में। The only difference. अगर डायरेक्ट स्पीच में if these words are given, then you need to convert to indirect speech. इस फॉर्म में करना है। have और has का पास्ट क्या है? had है। am, is, are का पास्ट क्या है? was, verb है। do और does का पास्ट क्या है? did है। have been और has been का पास्ट क्या है? had been है। वर्ब में आपको कहीं भी डिफरेंस नहीं मिलेगा। अब देखो, वर्ब V1 V1, V4 V4, V3 V3, V4 V4। वर्ब में आपको कहीं भी डिफरेंस नहीं मिलेगा। डिफरेंस आपको लेके आना है फेजेस में, क्योंकि ये प्रेजेंट का फेज है या पास्ट का फेज है। Okay? Example, direct speech, you got a statement like are you his friend? Are you his friend? अभी indirect speech में क्या होगा? Are you his friend? Indirect speech. हाँ? सचो क्या होगा?
यहाँ पे आर है, यहाँ पे आर है, तो आर है तो इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होगा? और इसके लिए कहा ऑब्जर्व करो, सोचो। जब हमारा यू ही नहीं तो शी सिंगुलर में होगा, जब हमारा यू ही नहीं तो शी सिंगुलर में होगा, जब मेरा यहाँ पे ही होगा तो मैं वर्ब यहाँ पे कैसा लिखूं? क्योंकि सिंगुलर के साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज करना पड़ेगा। Yes or no? जब मेरा सब्जेक्ट आई नहीं तो यू, मैं उसको यूज करूंगा ही और शी में। मैंने कहा प्रोनाउन फॉर्म आई एंड यू कन्वर्ट टू ही एंड शी, मी एंड यू कन्वर्ट टू हिम एंड हर। तो जब मेरा यहाँ पे यू ही और शी होगा तो सिंगुलर के साथ में सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब होगा, प्लूरल के साथ में प्लूरल हेल्पिंग वर्ब होगा। अगर मैं यहाँ पे आर यू नहीं, अगर मैं यहाँ पे आर वी लिखता, सोचो सोचो क्या होगा? हाँ, वर्ब होगा, वर्ब के साथ में फिर मेरा सब्जेक्ट क्या होगा? सिंपल, सिंपल है। बात करते हैं पांडे जी। यस, एट लास्ट आपको सब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्टिव केस वो समझ में आए। इसके लिए लेवल 1 उसका रिलेशनशिप हेल्पिंग वर्ब, सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ में जुड़ेगा, प्लूरल है तो प्लूरल के साथ में जुड़ेगा। आई एम कमिंग टू द पॉइंट। सिंगुलर है तो डज होगा, प्लूरल है तो डू होगा, सिंगुलर है तो इज होगा, प्लूरल है तो आर होगा। ये तो बेचारा परदेसी है, अंतरदेशी है। क्यों? उसका संबंध सिर्फ एक ही व्यक्ति के साथ में है, वो है आई। हमने उसको जंगल से बाहर रखा गया, जंगल से बाहर रखा गया। क्यों? तुम अकेले हो लेकिन थकेले नहीं हो, तुम आते हो ग्रुप में लेकिन यूनिक हो, तुम आते हो ग्रुप में लेकिन यूनिक हो। ये देखो आर, ये प्लूरल सबके साथ में आता है, लेकिन ये सबके साथ में नहीं आता, सिर्फ आई के साथ में आता है। यस, जहां पे आई होगा वहां पे एम होगा बस। तो इस वजह से एमीज आर सिंगुलर तो प्लूरल, एम तो ओनली आई के साथ में। तो देखो आर का अगर प्लूरल है तो, इज का प्लूरल है तो सिंपल। हैव इज फॉर द प्लूरल, हैव, हैज दोनों का एक ही है। नंदो सबका बंदो, हैव एंड हैज दोनों का बंधु कौन है? इधर देखो, दोनों का बंधु एक ही है, डिड। चाहे सिंगुलर प्रेजेंट में सिंगुलर डज में होता है, डू प्लूरल के साथ में होता है, लेकिन जब वो पास्ट में होता है तो सिर्फ यस। ठीक है, हैव बीन एंड हैज बीन, फिर हैड बीन। डायरेक्ट स्पीच कन्वर्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच कन्वर्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच। अगर मान लो ये आपको डायरेक्ट स्पीच में दिया जाता है तो, अगर ये देते हैं तो इस तरह से कर सकते हैं, लेकिन अगर ये हमें डायरेक्ट स्पीच में देते हैं तो देखो, याद रखो कैसे, सिंपल टू सिंपल, कंटिन्यूस टू कंटिन्यूस, परफेक्ट टू परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टू पास्ट परफेक्ट। अगर ये देते हैं तो किस तरह से याद रखना है? पास्ट सिंपल कन्वर्ट टू पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कन्वर्ट टू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आई एम गिविंग यू टेक्निक हाउ टू रिमेंबर।
Past simple tense convert to past perfect tense. Past continuous tense convert to past perfect continuous tense. First two convert to next two. Simple. ये जो दो ऊपर के हैं ये नेक्स्ट दो में चेंज होंगे. ये इसमें, ये इसमें. Any doubt? Any question? No question? Okay, better. Write 3 times. I'll ask again in tomorrow's class. Present simple convert to what? Past convert to what? Right. Thank you. See you tomorrow.